صدر آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ بلاول بھٹو پیر کے روز حکومت سازی کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی جو معروضی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک بڑی وفاقی پارٹی ہے پاکستان کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور جی بی میں بھی موجود ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی پاکستان کے چاروں صوبوں یا گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں کسی بھی طور پہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ وہ لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرتی ہے، ان کی مشکلات کو محسوس کرتی ہے۔ تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے نئی حکومت بنانی۔ وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی حمایت سے بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، اسی لیے حمایت ترک کر دی اور اب انہیں خود سوچ لینا چاہیے۔ پروگرام جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو میں طلال چودھری نے کہا کہ نون لیگ نے آزاد جموں و کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق باتیں بہت کرتے ہیں مگر کارکردگی صفر ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے؟ جی، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بدنامی لی ہے اس طرح کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہماری پارٹی کے طور پہ ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی حکومت بنائے یا گرائے، ہم حکومت کا بھی حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اکثریت دی تو حکومت بنائیں گے، نہیں تو اگلی دفعہ بھی اکثریت نہ ہوئی تو کسی کولیشن میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ نہ ڈیلیور کر سکتے ہیں بدنامی اپنی جگہ جو ہمیں اس دفعہ ملی۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی حمایت ترک کر دے تو پھر تو آٹومیٹیکلی وزیر اعظم بدل جائے گا۔ وزیر اعظم میرا خیال ہے ہم نے تو فیصلہ کر دیا جی۔ اب یہ پیپلز پارٹی کی مرضی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وزیر اعظم کو تو خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ ان سے حمایت وڈرا کر لی لیکن اپنا وزیر اعظم نہیں لا رہے ہیں؟ جی نہیں، ہم کیونکہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، ہم نے اپوزیشن میں رہنا ہے، کیونکہ ہمارا اتحاد بنانے والا وہاں پر ایک کوئی اچھا اسے ہمارے لیے نہیں رہا، نتیجہ نہیں نکلا، تو ہم فی الحال تو باہر رہیں گے اس حکومت سے، اور اس وزیر اعظم کو خود سوچنا چاہیے۔ باتیں تو بہت زبردست کرتے ہیں لیکن ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اس کی وجوہات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر خود اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات بلوچستان نیشنل ورک شاپ کے شرکاء سے خطاب میں کہی۔ Balochistan is the largest province of Pakistan. Allah Almighty has blessed the province with infinite natural resources. But unfortunately, as I speak, those great natural resources of our wealth are still hidden and buried under tons of mud and mountains. And unfortunately, what has happened in the last few years, rather spanning over more than a decade, is something a matter of self-introspection. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ قطر اور ترکیے کے ذریعے افغانستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ استنبول میں افغان طالبان سے ہونے والی بات چیت کے نتائج کل تک آ جائیں گے۔ افغان طالبان کن شرائط پر امن چاہتے ہیں آج کے مذاکرات میں واضح ہوگا۔ اگر ان کی شرائط ہمیں سمجھ آئیں تو معاہدہ ترتیب دیا جائے گا، اگر معاملہ طے نہیں پاتے تو ہماری افغانستان سے کھلی جنگ ہے۔ 4-5 دن سے کوئی واقعہ نہیں ہوا، ویسے میں بالکل اس کو قطر میں جو طے پایا تھا اس کا کم از کم 70-80% پاس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اگر طے نہیں پاتے تو پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ لیکن مجھے ان میں نظر آیا تھا کہ وہ کوئی امن چاہتے ہیں۔ کن شرائط پہ امن چاہتے ہیں
ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ वहाँ पे वाजे हुई, कुछ ये आज जो बातचीत हो रही है उसमें वाजे हो जाएंगी। उनकी शराइत जो हैं वो हमारे बारे में हुई तो इंशाअल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है, जिसमें ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ाकार के क़याम पर बातचीत हो रही है। तुर्क हुकाम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। अफगान वफ़द में अफगान सफारत खाने के क़ायम मकाम सरबरा सुहेल शाहीन, अफगान तर्जमान दफ्तर ख़ारजा अब्दुल क़हार और दीगर शामिल हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द शरीक है। कतर और तुर्की के सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया था। पाँच साल के तवील इंतज़ार के बाद कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए फ़िज़ाई सर्विस बहाल कर दी गई है। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर जाने वाली पहली परवाज़ 284 मुसाफिरों के साथ रवाना हुई। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने अपने पैगाम में कहा कि ये हकीकी खुशी का लम्हा है। मजीद मंजिलों और मजबूत फ़िज़ाई राब्तों के लिए नेक तमन्नाएं। तकरीब में कुरानंदाजी के जरिए एक खुशनसीब मुसाफिर के लिए 660 सीसी गाड़ी जबकि दीगर मुसाफिरों को मोबाइल फ़ोन और तोहफ़े दिए गए। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान और मेहमान जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाइया दिया गया। ज़ियाफ़त में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी समेत दीगर वज़रा ने भी शिरकत की। जुमे की शाम दिए जाने वाले इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। अपने खिताब में उन्होंने जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि जनूबी अफ्रीका के साथ मुख्तलिफ सतहों पर शानदार ताल्लुकात हैं और क्रिकेट भी उन्हीं में से एक है। ये महज खेल नहीं बल्कि दोनों मुल्कों को जोड़ने का जरिया भी है। जारी क्रिकेट सीरीज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। अशाइये में वफाकी वजीर खजाना और महसूलात मोहम्मद औरंगजेब, वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल, वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया ने ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायज़ा भी लिया। पाक मरीन्स में जदीद तरीन 2400 TD होवरक्राफ्ट्स के 3 यूनिट्स को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया। ISPR के मुताबिक होवरक्राफ्ट्स की शमूलियत पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में एक और अहम पेशरफ्त है। ये खुश्की और समंदर दोनों पर बैक वक्त कार्रवाई की मुनफरद सलाहियत रखते हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों से खिताब में कहा कि इन नए प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत पाक बहरिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के विजन की तजदीद है। ये मुल्क के समंदरी और साहली दिफा के अज़्म की भी तजदीद है। नेवल चीफ ने कहा कि समंदरी रास्तों और मैरीटाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अस्करी ज़रूरत नहीं, ये मुल्क की खुद मुख्तारी, इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी सतून है। हम जानते हैं कि सरक्रीक से जीवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समंदरी सरहदों के एक एक इंच का दिफा कैसे करना है। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन, खैबर जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम की सरहदी रास्ते 14वें रोज़ भी बंद हैं। बाब दोस्ती, तुरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। कस्टम हुक्काम के मुताबिक बाबे दोस्ती से हर किस्म की तिजारत और वीज़ा ट्रैवलिंग मुअत्तल है। सरहदी झड़पों के बाद पहली मरतबा आला सिक्योरिटी हुक्काम ने चमन सेक्टर का दौरा किया और बाबे दोस्ती और दीगर मुकामात पर नुकसानात का जायजा लिया। एस्पेन बोल्दक में 2 हफ्तों से खड़े ट्रकों में मौजूद फल खराब हो गए हैं। खैबर में तोरखम तिजारती गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए 14 रोज से बंद है। बॉर्डर पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। गाड़ियों में सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल, सब्जियां समेत मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला खुर्रम में खुरलाची सरहद भी बंद है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से काहिरा के इत्तेहादिया सदारती महल में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा, जबकि सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने आलमी और उम्मत मुस्लिमा के अहम मामलात में पाकिस्तान के मज़बूत और फ़ाल किरदार की तारीफ की। फ़रीक़ैन ने बाहमी स्ट्रैटेजिक मफादात पर करीबी राब्तों, अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग़ और समाजी और माशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में इश्तराकी अमल को मज़ीद वसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह हो गई, 3 ख़वारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 24 अक्टूबर को दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाइल ख़वारिज की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झल्लर में गाड़ी के जरिए खुदकुश हमले की तैयारी की इतलात मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर बर वक्त ऑपरेशन किया और इंतहाई महारत से ख़वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। MBBS और BDS में दाखिलों के लिए मुल्क भर से 1,40,000 से ज़्यादा तलबा आज MD कैट का इम्तहान देंगे। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए मजमूई तौर पर 33 मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से एक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में कायम किया गया है। सैफुर रहमान की रिपोर्ट। MD कैट 2025 के इम्तहान के लिए विफाक और चारों सूबों समेत मुल्क भर में 32 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि एक सेंटर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में बनाया गया है। ये इम्तहान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, IBA यूनिवर्सिटी सक्खर, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ले रही हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम होने जा रहा है। आउट ऑफ क्वेश्चन है ये वाली बात कि सिलेबस से बाहर सवालात आने की कोई कंप्लेन आएगी, वो हमने रिजॉल्व कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पेपर जो है वो कहीं लीक हो, अगर कोई पेपर खुदा न खास्ता लीक होगा तो वो सूबा जिम्मेदार है। वफाकी हुकूमत की तरफ से इम्तहान देने वाले तलबा को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की हदायत की गई है। मैं पूरे पाकिस्तान से ये उम्मीद करता हूँ, सारे सूबों से, कि वो अपने सेंटर्स को अच्छी तरह से विजिलेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, वो फैसिलिटेट करेंगे। ये जो पैसे लिए गए हैं उसमें उनको अच्छी जगह प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को, उसमें पानी की बोतल रखना उनके घर वालों के लिए जो है वो बैठने का इंतजाम करना, पंखे का इंतजाम, ये सब चीजें उसमें शामिल हैं। MD कैट इम्तहान के लिए मजमूई तौर पर 1,40,290 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराई है। इनमें से मेरिट पर पूरा उतरने वाले 22,000 तलबा को MBBS और BDS में दाखिला मिल सकेगा। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमीर जमात इस्लामी पंजाब ने जमात इस्लामी के 3 रोज़ा किसान रोड कारवान के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। जावेद कसूरी का कहना है कि कारवान इतवार की सुबह लाहौर प्रेस क्लब से रवाना होगा। कारवान पुरअमन होगा। हुकूमत पंजाब हमारे रास्ते में रुकावट न डाले। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद कसूरी ने कहा कि किसान रोड कारवान के पहले रोज़ के इख्तिताम पर उकाड़ा में जलसा मुनाकिद होगा। किसान रोड कारवान 27 अक्टूबर को काला शाह काकू से रवाना होगा और दूसरे रोज़ के इख्तिताम पर नौशहरा, वर्का, गुजरांवाला में जलसायाम होगा। 28 अक्टूबर को किसान रोड कारवां के तीसरे रोज़ का आगाज़ ननकाना इंटरचेंज से होगा। कारवां के आखिरी रोज़ गोजरा में किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ जलसा होगा, जिससे अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मुकदमा SHO SIU की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नौजवान की हिरासत में हलाकत का ये मुकदमा सदर थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि दौरान हिरासत इरफान की तबीयत ख़राब हुई और वो बेहोश हो गया। ASI आबिद और सरफराज मुलजिम से तफ्तीश कर रहे थे। पुलिस अफसरान बताए बगैर ज़ेर हिरासत नौजवान को अस्पताल ले गए। ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमा मशकूक है। मुकदमा 6 नामजद एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक राहगीर भी जख्मी हो गया।
SSP खुरम इकबाल के मुताबिक मेन शाहरा F1 में नामालूम मुल्ज़मान ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में फैज़ान, फरमान खोखर और हुज़ैफा नामी शख्स मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि एक राहगीर जख्मी हुआ। मक़तूलीन का ताल्लुक गुजरांवाला से था। SSP के मुताबिक शुबा है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। कराची में दिन में गर्म और खुश्क मौसम और रात में खुनकी ने एक ऐसा समा बांध दिया है कि शहरी हैरत ज़दा है कि ये सर्दियां हैं या गर्मियां। मौसम में आई ये तब्दीली क्या है, जानते हैं उनीबा ज़मीर शाह से। अक्टूबर एक गर्म महीना है और यही वो माह है जब हम मौसम गर्मा से सरमा में दाखिल हो रहे होते हैं। हवाओं का रुख बदलता है और यूं कराची में मौसम की तब्दीली दिन और रात में महसूस की जाती है। दिन में मतला साफ रहता है, तेज़ धूप और शुमाल मशरिक से चलने वाली गर्म और खुश्क हवाएं लू के थपेड़ों जैसी महसूस होती हैं। लेकिन जैसे सहराई रेत रात में ठंडी हो जाती है तो कराची में ये हवाएं खुनक महसूस होती हैं। दिन में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जबकि रात में ये दर्जा हरारत 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह रहे हैं। एक जानिब बहरे अरब में भी डिप्रेशन मौजूद है। ये सिस्टम कराची से तकरीबन 1000 किलोमीटर जुनूब मशरिक में मौजूद है। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन मौसम सरमा इस बार मुल्क में खुश्क ज़रूर गुजरेगा, यानी मौसम सरमा की बारिशें कम होंगी और नवंबर से वस्त दिसंबर तक पाकिस्तान के बड़े शहरों में स्मॉग की सतह में खतरनाक हद तक इजाफे का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। साबिक अमरीकी नायब सदर और ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक बार फिर सदारती इंतखाब लड़ने का इंदिया दे दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो इम्कानी तौर पर एक दिन अमरीका की सदर होंगी और उन्हें एतमाद है कि मुस्तकबिल में वाइट हाउस में खातून सदर मौजूद होंगी। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के हामियों की राय आमा के इस जायज़े को मुस्तरद कर दिया, जिसके मुताबिक इस बात का इम्कान कम है कि डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हें फिर से नामजद करेगी। उन्होंने ट्रंप को एक आमिर करार दिया और कहा कि उन्होंने अपनी सदारती मुहिम के दौरान ट्रंप के बारे में जिन बातों से मुतनब्बे किया था वो दुरुस्त साबित हुई हैं। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली हमलों में आज मजीद 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गजा जंग बंदी मुआहदे के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 93 फ़लस्तीनी शहीद और 324 ज़ख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बहरिया ने गजा के साहिल से 3 फ़लस्तीनी माहिगिरों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी माहिगिरों की कश्तियाँ और दीगर सामान भी तबाह कर दिया गया। बयाना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की एक तकरीब में 7 सहाफ़ियों को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड से नवाजा गया, जबकि हंगरी के आज़ाद मीडिया को इस साल के आज़ाद मीडिया पायनियर का खिताब दिया गया। जिन ममालिक के सहाफ़ियों को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड दिया गया है उनमें फ़लस्तीन, इथोपिया, जॉर्जिया, हांगकॉन्ग, यूक्रेन, पेरू और अमरीका शामिल हैं। फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी मरियम अबू दक्का भी ये अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं, जिन्हें बाद अज़ शहादत ये अवार्ड दिया गया है। 33 साला मरियम अबू दक्का के सहूनी फ़ौज ने खान यूनिस के एक अस्पताल पर बमबारी के दौरान शहीद कर दिया था। 10 साला PSL फ्रेंचाइज मुआहदा ख़त्म होने पर नए मुआहदों की तैयारियों का काम शुरू हो गया है। PSL में 2 नई टीमें शामिल की जाएंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ। लाहौर में CEO PSL सलमान नसीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चार्टर्ड फर्म ने PSL की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की। चार्टर्ड फर्म की नुमाइंदगी मोहसिन इकबाल और उनकी टीम ने की। PCB के मुताबिक वैल्यूएशन रिपोर्ट की बुनियाद पर 10 साला नया फ्रेंचाइज मुआहदा तैयार होगा, जो टीमों की नजरसानी शुदा मार्केट वैल्यू पर किया जाएगा। चार्टर्ड फर्म फ्रेंचाइज की नई मार्केट वैल्यू लगाएगी। अगले चंद रोज में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मौजूदा टीमों में से सिर्फ अहल टीमें ही नई बोली का हिस्सा बन पाएंगी। जराये का कहना है कि PSL की वैल्यूएशन के दौरान नई तजावीज़ सामने आई हैं। फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर किया जा रहा है। नई फ्रेंचाइज के मालिकाना हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे। आइंदा एक हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ड्राफ्ट बनाकर फ्रेंचाइजेज को भेजे जाएंगे। रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम न करने वाली फ्रेंचाइज ओपन बिड में जाएगी। PSL में शामिल 6 फ्रेंचाइजेज के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो रहे हैं और अब टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। कराची में 50 से ज़ायद स्कूलों के तलबा और तालिबात के दरमियान तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा करने का मुकाबला हुआ।
آرٹ کے مقابلے کا مقصد ہر شخص کے لیے ماحول محفوظ بنانے کا شعور اجاگر کرنا تھا تاکہ صنف کی بنیاد پر تشدد اور لوگوں کو ہراساں کرنے کا عمل روکا جائے، ایک دوسرے کا احترام اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ بڑھایا جائے۔ گوہر رشدی اور کبرا خان سمیت کئی اہم شخصیات نے اس ایونٹ میں شرکت کی۔ مقابلے میں 3 طالب علموں کے فنپاروں کو فاتح قرار دیا گیا۔ کراچی میں 50 سے زیادہ اسکولوں کے طلباء و طالبات کے درمیان تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا مقابلہ ہوا۔ آرٹ مقابلے کا مقصد ہر شخص کے لیے ماحول محفوظ بنانے کا شعور اجاگر کرنا تھا تاکہ اس صنف کی بنیاد پر تشدد اور لوگوں کو ہراساں کرنے کا عمل روکا جائے، ایک دوسرے کا احترام اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ بڑھایا جائے۔ گوہر رشید اور کبرا خان سمیت کئی اہم شخصیات نے اس ایونٹ میں شرکت کی۔ مقابلے میں 3 طالب علموں کے فن پاروں کو فاتح قرار دیا گیا۔